वी कैन स्टार्ट। क्रम आ तो गई है सारे लोग, है ना? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। अच्छा, अभी क्रम है 42nd पढ़ना है ना? जी है ना? जी। तो मैं पढ़ता हूँ पहले, या तुम पढ़ो? मैं पढ़ूं जी? यही हाँ पढ़ो जी। तमिम महमजम शरीर भांजान हृदि हृदि दृष्टितम आत्म कल्पितानम प्रति दृश्मिव नैक धार्मेकम समधि गतो अस्मि विधूत भेद मोह। ट्रांसलेशन। Now I can meditate with full concentration upon that one Lord, Sri Krishna, now present before me, because now I have transcended the misconceptions of duality in regard to his presence in the everyone's heart, even in the hearts of the mental speculators. He is in everyone's heart. The sun may be perceived differently, but the sun is one. Purport. Lord Shri Krishna is the one absolute supreme personality of Godhead, but he has expanded himself into his multiplinary portions by his inconceivable energy. The conception of duality is due to ignorance of his inconceivable energy. In the Bhagavad Gita 9.11, the Lord says that only the foolish take him to be a mere human being. Such foolish men are not aware of his inconceivable energies. By his inconceivable energy, he is present in everyone's heart, as the sun is present before everyone all over the world. The Paramatma feature of the Lord is an expansion of his plenary portions. He expands himself as Paramatma in everyone's heart by his inconceivable energy, and he also expands himself as the glowing effulgence of Brahma Jyoti by expansion of his personal glow. It is stated in the Brahma Samhita that the Brahma Jyoti is his personal glow. Therefore, there is no difference between him and his personal glow. Brahma Jyoti, or his plenary portion of Paramatma. Less intelligent person who are not aware of this fact consider Brahma Jyoti and Paramatma to be different from Sri Krishna. This misconception of duality is completely removed from the mind of Bhishma Dev, and he is now satisfied that it is Lord Sri Krishna only who is all in everything. The enlightenment is attained by the great Mahatmas or devotees, as it is started as it is stated in Bhagavad Gita 7.19, that Vasudev is all in everything, and there is no existence of anything without Vasudev. Vasudev, or Lord Shri Krishna, is the original supreme person, as now confirmed by Mahajana, and therefore both the neophytes and the pure devotees must try to follow in his footsteps. That is the way of the devotional line. The worshipable object of Bhishma Dev is Lord Shri Krishna, as Parthsarthi, and that the gopis is the same Krishna in Vrindavan as the most attractive Shyam Sundar. Sometimes less intelligent scholars make a mistake and think that the Krishna of Vrindavan and that of the battle of Kurukshetra are different personalities. But for Bhishma Dev, this misconception is completely removed. Even the impersonalist object of destination is Krishna as the impersonal Jyoti, and the yogi's destination of Paramatma is also Krishna.
Krishna is both Brahmajyoti and localized Paramatma. But in Brahmajyoti or Paramatma, there is no Krishna or sweet relation with Krishna. In his personal feature, Krishna is both Parth, Sarthi, and Shyam Sundar of Vrindavan. But in his impersonal feature, he is neither in the Brahmajyoti nor in the Paramatma. Great Mahatmas like Bhishma Dev realize all these different features of Lord Shri Krishna, and therefore they worship Lord Shri Krishna, knowing him as the origin of all features. यहाँ पर ना जो बड़े बड़े आचार्यों ने मतलब लॉर्ड श्री कृष्णा के 3 फीचर्स को बहुत तरह से समझाने की कोशिश की है। परमात्मा फीचर, ब्रह्म ज्योति फीचर एंड हिज पर्सनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। क्योंकि भीष्मदेव ने ये चीज रियलाइज कर ली है कि भाई ये जो तीनों चीजें हैं वो भगवान के कर्म है, मतलब वो एक्सपेंशन है। जो परमात्मा हमारे हृदय में है और जो ब्रह्म ज्योति है जो उनकी पर्सनल ग्लो है। तो बट कर्म यहीं पे भीष्मदेव ने उनके उनके पर्सनलाइज एस्पेक्ट को ही वो वर्शिप कर रहे हैं, जैसा कि प्रीवियस वर्सेस में भी बताया गया है कि गोपीज को भी मतलब वो रिवियर कर रहे हैं और हर तरह से मतलब, और वो उनको चूंकि वो उनको भगवान को प्रेम करने लगे हैं एज ए पार्थ सारथी इन द बैटल फील्ड, तो वो उनको कर्म है अपना वो फीचर याद है ना, और वो उसी को रिमेम्बर करके वो डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं। तो यही मतलब यहाँ पे इस पूरे इसका इम्पोर्ट है कि एक तरह से डिवोटीज को, हम लोगों को भी यही इम्प्रेस करने की कोशिश की जा रही है, भाई ट्राई टू डेवलप ए रिलेशनशिप विद द सुप्रीम लॉर्ड, एंड विच इज वेरी मच पॉसिबल। जैसे जैसे हम लोग मेरे को लगता है पढ़ेंगे प्लस तो वो ऑटोमेटिकली डेवलप होने लग जाएगा। यहाँ पे एक दो पॉइंट और जो मेरे को जो इम्प्रेस अपॉन किए कि ये श्रीला प्रभुपाद ने भी बार बार कहा है कि हमको महाजन्स को फॉलो करना है, क्योंकि महाजन या आचार्य क्योंकि इनको रियलाइजेशन हुआ है, इनको भगवान, इन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया है कि इनको भगवान का एक्चुअल समझ में आया कि भगवान क्या है। अच्छा, भीष्म देव एक महाजन है, इसलिए उनका ये कहना, नाउ आई कैन मेडिटेट विद फुल कंसंट्रेशन अपॉन दैट वन लॉर्ड श्री कृष्ण। सो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मेरे को लगा कि पहली बात कि लॉर्ड इज वन एंड इट इज लॉर्ड कृष्णा, इज द पर्सन एंड इट्स हिज पर्सनैलिटी, दैट इज व्हाई ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो ये चीज, जैसे यही चीज जो श्रीला प्रभुपाद भी कह रहे हैं, इट इज कंफर्म्ड बाय अ महाजन, therefore both the neophyte and the pure devotee must try to follow in his footsteps, in the footsteps of Mahajan. That is the way of the devotional line. ये हम लोगों की डिवोशनल लाइन का जो है ये बहुत क्रिटिकल पार्ट है कि जो महाजन्स हैं, जो ये लोग हैं, इनकी बात को हम माने और तब हम लोग प्रोग्रेस कर पाएंगे। ये चीज अच्छा, ये लोग रियलाइज क्यों है, जैसा मेरे को समझ में आया कि इन लोगों ने बहुत ज्यादा तप किया है। मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा तप किया, तप का मतलब तपस्या की है, त्याग किया है, तो इनको फिर भगवान का रियलाइजेशन हुआ है। अच्छा, और वो हर एक डिवोटी को करना ही पड़ता है, हम लोग भी कर रहे हैं। जैसे देखिए आप कर्म है, एक तरह से अपना टाइम दे रहे हैं, अपने टाइम की आहुति दे रहे हैं ना, तो अपना कर्म है। जब आप जप करते हैं तब भी आप टाइम की आहुति देते हैं, अपने सेंसेस की आहुति देते हैं, मतलब ना आपके सेंसेस किसी और काम में लगे होते हैं, आपका माइंड किसी और काम में लगा होता। हम लोग बहुत लोअर लेवल पे हैं, बट इट डजंट मैटर, यू सी। द फैक्ट इज कि यहाँ पर डिसाइप्लिक सक्सेशन का यही मतलब होता है कि भाई आप ये रियलाइज सोल्स को, जो आचार्य हैं, जो मुनीज हैं, जो ये मॉडर्न डे आचार्य हैं, उनको फॉलो करें, बिकॉज दे हैव रियली, उन्होंने तप किया है बहुत ज्यादा कलम है, और वो उनको इन सब चीजों का ज्ञान है। इसलिए इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग थिंग्स कलम है, इट इज बेटर टू, इट विल सेव योर टाइम और यू कैन रीच बाय दैट गोल ऑल्सो।
but then you will have to really मतलब many लाइफ टाइम्स के बाद ही शायद, जैसे मेंटल स्पेकुलेटर्स वगैरह वो भी पहुंच जाते हैं वहां पे, ज्ञान योग से भी पहुंच जाते हैं, बट ये दिस इज अ शॉर्टर मेथड. नेक्स्ट कौन, मैं पढ़ता हूँ, है और कुछ आई थिंक दैट इज ये ठीक है. 43. कृष्ण एवं भगवती मनोवाह दृष्टि वृत्ति भी आत्मनि आत्मनम अवेश्य सो अंतः श्वास उपारमत. Suta Goswami said, the Bhishma Dev merged himself in the super soul Lord Shri Krishna. The Supreme Personality of Godhead is with his mind, speech, sight, and actions, and thus he became silent, and his breathing stopped. The stage attained by Bhishma Dev while quitting his material body is called Nirvakalpa Samadhi, because he merged himself into thinking of the Lord and his mind into remembering his different activities. He chanted the glories of the Lord, and by his sight, he began to see the Lord personally present before him. And thus, all his activities became concentrated upon Lord without deviation. This is the highest stage of perfection, and it is possible for everyone to attain the stage by practice of devotional service. The devotional service of the Lord consists of 9 principles of service activities, and they are: number 1, hearing, chanting, remembering, serving the lotus feet, worshipping, praying, executing the orders, fraternizing, and fully surrendering. Any one of them or all of them are equally competent to award the desired result, but they are required to be practiced personally, persistently, under the guidance of expert devotee of the Lord. The first item, hearing, is the most important item of all, and therefore hearing of Bhagavad Gita and later on Srimad Bhagavatam is essential for the serious candidate who wants to attain the stage of Bhishma Dev at the end. The unique situation at Bhishma Dev's time of death can be attained even though Lord Krishna may not be personally present. His words of Bhagavad Gita or those of Srimad Bhagavatam are identical with the Lord. They are sound incarnations of the Lord, and one can fully utilize them to be entitled to attain the stage of Sri Bhishma Dev, who was one of the 8 Vasus. Every man or animal must die at certain stage of life, but one who dies like Bhishma Dev attains perfection, and one who dies forced by the laws of nature dies like an animal. That is the difference between a man and an animal. The human form of life is especially meant for dying like Bhishma Dev. सारा क्लियर कर दिया है उन्होंने जी. तो सबसे बड़ी बात कही है, मतलब कई चीजें कही हैं. एक तो उन्होंने यहाँ पे हियरिंग की इंपॉर्टेंस बड़ा तगड़ा बताई है. जो हियरिंग और रीडिंग एक ही चीज है, मतलब वो तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बताइए. फिर दूसरी चीज ये बताइए कि भगवत गीता का नाम है, और भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम और भगवान में कोई फर्क नहीं है. ये भी उन्होंने मतलब प्रभुपाद जी बता रहे हैं. और जैसा तुम भी ने भी बताया ना, कई लोग जो बड़ा डरने लग जाते हैं जब एट द टाइम. अब जब आप ये सब करेंगे आपको डर नहीं लगेगा. यू विल अल्टीमेटली क्या नाम है, मतलब आप सोचेंगे ही सोचेंगे. जब आपको क्या नाम है तकलीफ होगी और ये होगा तो आपका ध्यान इधर उधर ना जा करके भगवान की तरफ जाएगा ऑटोमेटिकली. ये अभी से होने लग जाएगा. जब आप सरेंडर धीरे धीरे करना शुरू कर देंगे ना, तब आपको विपदाएं तो आएंगी, तरह तरह की विपदाएं आएंगी. बहुत हाई डायमेंशन की भी आ सकती हैं, छोटे डायमेंशन की भी आ सकती हैं. लेकिन जैसे जैसे आप सरेंडर का बेनिफिट देखेंगे ना, कि भाई आपको क्या नाम है, मतलब आप इसी वो तो आपका क्या नाम है, जो आपके साथ हो रहा है ना, वो तो काल की नियति है, वो तो होगा ही, क्योंकि आपके पुराने कर्मास हैं प्लस
इट इज द नेचर ऑफ क्या नाम है योर बीइंग, कंडीशन लाइफ में होने का या कॉन्सिक्वेंस है कि आपको ये सब होना ही होना है। लेकिन व्हेन यू आर सरेंडर टू द लॉर्ड, उसके तो जैसे जैसे हम भगवद गीता आगे पढ़ेंगे ना, तो उसमें सब भगवान खुद ही बताएंगे, है ना, कि भाई जी उनको उन्होंने खुद ही कह दिया 18th चैप्टर में, क्या नाम है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, है ना, मेरी शरण में आ जाओ बस तुम, है, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, मतलब मैं तुम्हारे सारे पापों को हर लूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। हमें अब भगवान आपको बिल्कुल टोटली एश्योर कर रहे हैं। तो और क्या, और कोई भी, जैसे वरुण बार बार मेरे से भी कहते हैं, इज देयर एनी अदर पर्सन और गॉड एनीबडी हु कैन एश्योर यू लाइक दिस? You see, that is the beauty of Lord Shri Krishna. You see, Yes. man, that he is so much reassuring to his devotees. मेरे को तो ये भी बहुत अच्छा लगा, ये पूरा का पूरा जो है ना, इट रीअश्योर्स की क्रम में हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, दैट इज ऑफ वेरी हाई ऑर्डर, एंड आई एम वेरी श्योर कि हम लोग जो सुबह उठ रहे हैं या इतना वो कर रहे हैं, कोई हमारी एनर्जी में कोई कमी नहीं आई होगी, आई एम वेरी श्योर, बल्कि बढ़ी गई होगी। उसके भी अदरवाइज भी बड़े मेडिकल फायदे हैं, यू नो, पढ़ने के, मेडिटेट करने के, पार्किंसन में, क्या नाम है, मतलब मेमोरी लॉस में, हर एक चीज में फायदे हैं। यू नो, फालतू चीज आप सोचेंगे नहीं, भगवान के बारे में सोचेंगे, ये हाई लेवल चीजों के बारे में सोचेंगे, फर्क पड़ेगा आपको, नो? यस बिल्कुल 100%। और स्पेशली ब्रह्म मुहूर्त में ये सब करने के तो मतलब, ये तो यहाँ पे इवन वेस्टर्नर्स ने भी ये चीज एक्नॉलेज करी है कि भाई सुबह सुबह उठ के आप जो चीजें पढ़ें उसका आपको सबसे ज्यादा रिटेंशन होगा, सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो सुबह सुबह ये पढ़ने का ब्रह्म मुहूर्त में, इससे ज्यादा अच्छी चीज कुछ नहीं हो सकती। नहीं, कुछ नहीं, मैं कहता हूँ कि आप आजकल तो यार टेक्नोलॉजी इतना काइंड है, आप हैंड्स फ्री लगा करके कोई जरूरत नहीं, आप सुनते ही रहो, अपने बाकी काम करते रहो, है कि नहीं? आपको मैं रिकॉर्डिंग भी डाल रहा हूँ, उसको ही सुन लो, चलो जब भी कर्म तुम्हें टाइम मिले। अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त में आपने खुद भी फील किया होगा, चारों तरफ शांति होती है, एब्सोल्यूट स्टिलनेस, मोटा मोटी तो स्टिलनेस होती है टोटल, है, मतलब इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ हैबिट, धीरे धीरे करके आपको अच्छा लगने लगेगा। अब भाई थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अगर आप फोर्स करेंगे तो जल्दी सो भी जाएंगे, क्योंकि देर से मैं भी बड़े 11 11 साढ़े 11 पे, पहले 9 बजे खाता था, 9:30 बजे खाता था, वो अपने आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे छूटने लग जाता है ना? जी चलो भाई, और कुछ कहना है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट चले हैं। 44 हाँ। सम्पाद्यमानम् अज्ञाय भीष्मं ब्रह्माणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वायं शिवदिनात्याये। Translation. Knowing that Bhishma Dev had merged into the unlimited eternity of the Supreme Absolute, all present there became silent like birds at the end of the day. Purport. To enter into or to become merged into the unlimited eternity of the Supreme Absolute means to enter the original home of the living being. The living beings are all component parts and parcels of the absolute personality of Godhead, and therefore they are eternally related with Him as the servitor and the served. The Lord is served by all His parts and parcels, and as the complete machine is served by its part and parcels. Any part of the machine removed from the whole is no longer important. Similarly, any part and parcel of the absolute detached from the service of the Lord is useless. The living beings who are in the material world are all disintegrated parts and parcels of the Supreme Whole, and they are no longer as important as the original parts and parcels. There are, however, more integrated living beings who are eternally liberated. The material energy of the Lord, called Durga Shakti, or the superintendent of the prison house, takes charge of the disintegrated parts and parcels, and thus they undergo a conditioned life under the laws of material nature.
When the living being becomes conscious of this fact, he tries to go back home, back to Godhead, and thus the spiritual urge of the living being begins. This spiritual urge is called Brahma Jigyasa, or inquiry about Brahman. Principally, this Brahma Jigyasa is successful by knowledge, renunciation, and devotional service to the Lord. Gyan or knowledge means knowledge of everything of Brahman, the Supreme. Renunciation means detachment of material affection. And devotional service is the revival by practice of the original position of the living being. The successful living beings who are eligible to enter into the realm of the Absolute are called Jnanis, the Yogis and the Bhaktas. The Jnanis and the Yogis enter into the impersonal rays of the Supreme, but the Bhaktas enter into the spiritual planets known as Vaikunthas. In these spiritual planets, the Supreme Lord as Narayan predominates, and the healthy, unconditioned living beings live there by rendering loving service to the Lord in the capacity of servant, friend, parents, and fiancé. There, the unconditioned living beings enjoy life in full freedom with the Lord, whereas the impersonalist Gyanis and Yogis enter into the impersonal glowing effulgence of the Vaikuntha planets. The Vaikuntha planets are all self-illuminating like the sun, and the rays of the Vaikuntha planets are called Brahmajyoti. The Brahmajyoti is spread unlimitedly, and the material world is but a covered portion of an insignificant part of the same Brahmajyoti. This covering is temporary, and therefore it is a sort of illusion. Bhishma Dev, as a pure devotee of the Lord, entered the spiritual realm in one of the Vaikuntha planets, where the Lord, in his eternal form of Parthasarathi, predominates over the unconditioned living beings who are constantly engaged in the service of the Lord. The love and affection which binds the Lord and the devotee are exhibited in the case of Bhishma Dev. Bhishma Dev never forgot the Lord in his transcendental feature as the Parthasarathi, and the Lord was personally present before Bhishma Dev while he was passing to the transcendental world. That is the highest perfection of life. ये बहुत ही मुझे जो इसमें ये बड़ा अच्छा लगा कि ये जो कहा ना कि कंडीशन जो लोग हैं जिसके बारे में हम बातें करते रहते हैं, दे आर लाइक द डिसइंटीग्रेटेड पार्ट्स एंड पार्सल, मतलब जो पार्ट एंड पार्सल जो टूट के बिखर गए हैं और मतलब वो मतलब टू अलग हो गए हैं, मतलब लाइक दे आर और बिल्कुल मतलब डिसफंक्शनल हो गए हैं, और उनको फिर दुर्गा शक्ति जो है वो उनके ऊपर फिर वो करती है भाई, उनको प्रिजन हाउस में पनिश। Whereas जो मतलब कि जो पार्ट्स एंड पार्सल भगवान से कनेक्ट कर रहे हैं, जो लोग भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, भक्त बन रहे हैं, उनपे फिर भगवान जो है उनको फिर योग माया उनपे एक्ट करती है, और वो फिर वो भगवान उनको फिर उनके थ्रू अपने भगवान तो एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग है, भगवान नॉन डिवोटी से भी अपने काम कराते हैं, और डिवोटीज तो वॉलेंटरीली काम करते हैं, और नॉन डिवोटीज भी माया के थ्रू वो भगवान के ही काम कर रहे हैं। वो जैसे यहाँ पे जैसे वॉर हो रही है, या ये जो कोविड फैल गया, वो भी भगवान का ही काम हो रहा है। वो भगवान वो बस माया शक्ति से करा रहे हैं, आपको बिल्डर कर करके आपको वैसे करा रहे हैं। ऐसे आप खुद भगवान के लिए काम करना स्टार्ट कर दीजिए, दैट इज मच इजियर एंड मच मोर जॉयफुल। ऐसे फिर आप वो कराते रहिए। बड़ा अच्छा बताया भाई मेरे को। आप देखो कि एक्चुअली अगर आप देखोगे ना तो आप जो है ना ऐसा सीवियर पोर्शन आपको लगे, मतलब उन्होंने कहा है भगवान ने, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पार्ट थे भगवान के, पार्ट से कट करके आप अलग हो। नो, यू आर मतलब यू आर इंडिविजुअल सोल्स, बट येट यू गॉट डिटैच फ्रॉम हिज भक्ति। आप उनसे वो छोड़ दिया। अब भगवान इतने काइंड हैं कि उन्होंने आपको ये संसार बना करके, ये सब बना करके भेजा, और दुर्गा देवी जी को कर्म है आपके कर्म है, प्राकृतिक शक्ति जो है उनकी, मतलब जिसको प्रकृति बोलते हैं, मतलब दुर्गा जी, उनको कर्म है सुपरिटेंडेंस के लिए रखा। अच्छा, आप देखो कर्म है कि इस संसार में वो, इट्स लाइक दिस बॉडी इटसेल्फ इज ए प्रिजन, वी आर लाइक प्रिजनर्स इन दिस बॉडी, और वो इसी टाइप का ये संसार है पूरा का पूरा। अब उसके अंदर में आप जो है तीनों गुणों के हिसाब से आप चलते रहते हो।
उसके अंदर प्रिजन में ही आप जो है एक अच्छे किसी सेल में चले जाते हो, बुरे सेल में चले जाते हो, आइसोलेशन में चले जाते हो, लाइक दैट आपको वेरियस क्या नाम है जैसे बॉडीज मिलती रहती हैं। भगवान जो है ना ये दुर्गा जी की कर्म मदद से आपको डिफरेंट टाइप की बॉडी देते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन योर कर्मास। बट द मोमेंट यू स्टार्ट अटैचिंग टू क्या नाम है मतलब भगवान मनुष्य का जब जन्म देते हैं तो आपको इस बात को डिसर्न करने की पावर दे देते हैं। फिर आपको मिलती है एक बात, 84 लाख नॉर्मल लोगों को भी, पापियों को भी 84 लाख योनि करने के बाद में ये फिर जन्म मिलता है मनुष्य का, विच हैज बीन ऑलवेज सेड कि वेरी प्रेशियस। उसके अंदर अगर आप भगवान से जुड़ जाते हैं तो फिर आपको फिर कर्म निकलने का मौका मिल जाता है यहाँ से भगवान के पास जाने का। और उनके मतलब उनके 4-5 रोल जो बार बार बताए गए हैं उसके अंदर में आपको आप यू कैन बी एटर्नली ब्लिसफुल। सच्चिदानंद विग्रह जो है, सच्चिदानंद भगवान भी हैं, आप भी सच्चिदानंद हो जाओगे बस। मतलब लेकिन चूंकि कर्म हम लोग अभी मटेरियल सेंसेस ही है ना, इसीलिए हम सोचते हैं यार इस सुख का तो हमें पता है, उस सुख का कुछ हमें पता ही नहीं है ना। तो इसीलिए आदमी इसी माया के चक्कर में पड़ा ही रहता है कि टेम्पररी हैप्पीनेस में, जवान खाना खाने में बड़ा मजा आ रहा है, मतलब वी डू नॉट नो एनी हायर टेस्ट बड़ा ही अच्छा है प्रभुपाद जी। यही फर्क है रियलाइज लोगों के परपोर्ट को पढ़ने में और मतलब उनसे बात समझने में, और एक वो जो खाली ड्राई शुष्क जो स्पेकुलेटर्स है ना वो ट्रांसलेशन करके ये बता देंगे और थोड़ा बहुत अपनी बेवकूफ़ी भरी बातें उसमें ऐड कर देंगे। और जैसा कहा है ना बार बार की दे अपीयर वेरी सोफिस्टिकेटेड ऑल्सो, है ना। काफी लोग फंसे रहते हैं इन सब चक्करों में। इज नो पॉइंट भक्ति योग से ज्यादा कुछ बड़ा है ही नहीं। वो ये भी बताया उन्होंने, देखो ना, कि ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों ही कर्म है। मतलब ज्ञान वैराग्य का मतलब फिर बार बार हम एम्फसाइज करते, इसका मतलब ये नहीं कि आपके नित्य कर्म आप छोड़ दोगे। यू कैन बी कर्म डिटैच्ड। डिटैच होना जो है की है, की डिटैच होने का मतलब ये नहीं कि आप डे टू डे नित्य कर्म से छुटकारा मिल जाएगा, मतलब उसको तो करना भी नहीं बड़ा है। अच्छा बताया ना कि डिटैचमेंट आपके मटेरियल मोटिवेशन से आप डिटैच करके भगवान से अटैच कर रहे हैं। जो आपके अभी तो मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन वाले मोटिवेशन है, उससे उसको रिप्लेस कर रहे हैं कि मैं भगवान को सर्विस कर रहा हूँ। यू आर अटैचिंग योर सेल्फ टू लॉर्ड कृष्णा, कि मैं लॉर्ड कृष्णा के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं लॉर्ड कृष्णा के लिए आज मैं किस तरह से उनको सर्व कर सकता हूँ। तो यही जैसे इसमें है ना, रिनाउंसिएशन मीन्स डिटैचमेंट ऑफ मटेरियल अफेक्शन। मटेरियल चीजों को छोड़ के आप भगवान की तरफ और वो बिल्कुल मुझे जो सबसे अच्छा लगता है कि भक्ति में दैट इज इन एक्शन वो आ जाता है। डिवोशनल सर्विस इज एक्शन में वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिनाउंसिएशन। जैसे रिनाउंसिएशन तो मेंटल लेवल पे है और भक्ति जो है डिवोशनल सर्विस वो एक्शन लेवल पे है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और जो मेरे को तो ये लगता है कि सबको कर्म है, जैसे हम लोग हैं ये 4 जने, ऑल आर इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ एंड डिफरेंट ऑक्यूपेशन। वी ऑल शुड मेडिटेट कि भाई मैं कैसे अपनी एक्टिविटीज को कृष्णाइज कर सकता हूँ, कैसे मैं चेंज कर्म है नहीं, बस कृष्णाइज। हाँ, चेंज कृष्णाइज नहीं करनी यू नो। एक्टिविटी, अब देखो, जोड़ना है, आप रियलाइज जोड़ना नहीं। करोगे कि अब वहां पर कोटा में कितने सुसाइड्स हो रहे हैं। तो क्या टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वहां पे जो 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 वहां पर जो क्या नाम है वो जो बड़े मोटी पढ़ा रहे मोटी हैं, यस। तनख्वाहें ले रहे हैं और क्या नाम तनख्वाह ले रहे हैं, एक भी बच्चा अगर मर जाता है उनके क्लास में, देन इट इज देयर जॉब। यार बच्चों को तो ये भी तो बताना चाहिए कि भैया इसमें अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कहीं ना कहीं उनको ये भी उनकी ड्यूटी बनती है इन सम वेज। ऑल्दो किसी और को लगेगा कि यार डिमोटिवेट क्यों कर रहे हो तो बच्चा पढ़ना ही छोड़ देगा, नो, यू हैव टू टेल क्या नाम है मतलब कुछ उसको हायर लेवल पे यू शुड ट्राई टू गाइड द चिल्ड्रन। अदरवाइज आपको अपने को देखना है, फिर यू कैन दे कैन लर्न बाय एग्जाम्पल। वो आपकी एक्टिविटीज में आने लग जाएगा। अदरवाइज आप उनको बच्चों को ड्राइव कर रहे हैं, अरे यार साले
मतलब यू सी ए फ्लावरिंग चाइल्ड इज, क्या करेगा यार, थोड़ा सा कम पैसे कमा लेगा, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ जाएगा, है ना। तो यू सी, इंस्टेड अगर आप उसको कुछ अच्छी वैल्यूज दे देंगे, कुछ अच्छे प्रिंसिपल्स दे देंगे, दैट इज मच बेटर। मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ कर्म है कि नहीं नहीं, ऑल ऑफ अस, ये तो हमने और पापा ने बार बार डिस्कस किया है। ये बात पक्की है, हम दोनों ने वी हैव टेकन एजुकेशन, हमने सारी ये मटेरियल एजुकेशन ली। इट नेवर टीचेस यू हाउ टू डील विद लाइफ। चाहे लाइफ, वो आप आईआईटीज, आईआईएम्स, यहाँ पीएचडी हम लोगों ने सब करा। इट डज नॉट टीच यू हाउ टू डील विद लाइफ चैलेंजेस। लाइफ के जो इश्यूज आते हैं उसको डील करने का एक मतलब 0.01% भी डज नॉट हेल्प। इट ओनली टीचेस यू हाउ टू गो अर्न ए लिविंग, दैट इज इट। भाई वो पैसा मैं कैसे वो को खर्च करें, उस पैसे से क्या करें, कुछ नहीं सिखाता। अपनी लाइफ को कैसे चलाएं, कहाँ सिखाता है? कोई कॉलेज नहीं अरे सिखाता भाई कोई। मैं जो बोलो। आई रिमेम्बर क्या नाम है वो, 10th क्लास से ही पतली पतली किताबें साले बोर्ड के एग्जाम की, मतलब पॉसिबल क्वेश्चंस क्या नाम है वो गेस गेस पेपर आने लग जाते हैं, पता नहीं, यू स्टार्ट ड्राइविंग द चिल्ड्रन फ्रॉम दैट स्टेज इटसेल्फ। उसके बाद में, अच्छा आप देखो आईआईटी वगैरह में भी हम लोग के वहां पे 5 ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज कंपलसरी थे। 5 ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज आजकल भी होगा, सब जगह पे ही होगा। व्हाट इज द हार्म इन कीपिंग वन कोर्स ऑन भगवत गीता? मैं कहता हूं कुरान पे भी करो यार, कुरान पे भी करो, करो, यस। बाइबल पे भी करो। क्रिश्चियनिटी में करो, मैं ये यस। नहीं कह रहा हूं कि तुम कोई हिंदुइज्म पढ़ा रहे हो, बट व्हाई कांट यू हैव वन कोर्स? उसकी एक बेसिकनेस। if I remember correctly, 2001 2001 नहीं, 7 onwards जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इवन आईआईटी प्रोफेसर्स ने ही उन चीजों को एनालाइज करके इनकॉर्पोरेट किया है सिलेबस में। इट कॉज ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स there, parallel to the Gita content is there. Very few authors are there to write the book, but it has been introduced. But it is still a matter of how to educate this, क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं उनका इम्पैक्ट पड़ता है, वो उस चीज को भी बड़े मैटरलिस्टिक वे में पढ़ा रहे हैं। हाँ, है ये तुमने कहा ना, यही एग्जैक्टली यही, ये एथिक्स की टीचिंग और ये मॉरल वैल्यूज की टीचिंग हैज बिकम अनदर बिजनेस इज एमबीए कॉलेजेस, एमबीए एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस। वहीं के पढ़े हुए जो टॉप एलीट कॉलेज है, उनके ही सबसे बड़े फ्रॉडस्टर है। आप जो बड़े बड़े जो द टॉप मोस्ट फ्रॉडस्टर्स आर फ्रॉम हार्वर्ड, एमआईटी एंड ऑल दैट, नो। अच्छा, और ये जो है ना, ये भगवत गीता का जो कॉमर्शलाइजेशन कर, आपको हल्का लगता है कि यार ये तो वही बात कर रहा है, इसमें साले ये जो मेंटल स्पेकुलेटर्स का बड़ा हाथ है, जो कि अब सन्यासी का रोप पहन करके घूम रहे हैं और बड़े बड़े कॉलेजेस में जाके पैसे कमा रहे हैं। बस तो until ये जो है ना, unless यू आप जो है मस्ट ना टीच मतलब प्योर थिंग, डू नॉट एडल्टरेट इट, यू नो, जस्ट। until unless जैसे कि मतलब मैं जैसे मौसी जो आप बता रहे हैं ना, मतलब आप एक मेरे को यू जस्ट टेक दिस इनटू कंसिडरेशन। हम लोगों के पहले जो वर्णाश्रम में ब्रह्मचर्य में ये ट्रेनिंग होती थी कि भाई यू सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर योर स्पिरिचुअल मास्टर। आप आल्म्स भिक्षा लेके आएंगे, वो भी स्पिरिचुअल मास्टर को देंगे। सैक्रिफाइस वाज द मेन वैल्यू। गीता में सैक्रिफाइस टू लॉर्ड विष्णु, टू लॉर्ड कृष्णा, सैक्रिफाइस ऑफ योर ड्यूटीज करनी है लॉर्ड कृष्णा के लिए करनी। ये जब तक आप बात नहीं करेंगे, ये कोई भी कॉलेज में, कोई भी यूनिवर्सिटी में, कोई भी कोर्स में, कहीं पे भी ये नहीं डिस्कस हो रहा ओ भाई ये मैं पढ़ रहा हूँ, किसके लिए पढ़ रहा हूँ, ये मैं सिर्फ अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए पढ़ रहा हूँ। वेयर एज तो मेरा रिलेशन भगवान से क्या है, बस सिर्फ इतना ही कि मैं मतलब ताकि मैं अपने को खुश रख सकूं बस। तो फिर तो then you are having you will have a very disastrous life। यहाँ पे अमेरिका में तो they are having a disaster of a life। ये loneliness, selfishness, you will have a disastrous life। ये यहाँ पे हार्वर्ड ने तो बहुत सारी स्टडीज की हैं, मतलब यू कैन टेल, वहां पे जो हार्वर्ड के ग्रेजुएट्स हैव एंडेड अप कमिटिंग सुसाइड इन मेंटल असाइलम्स एंड प्रिजन सेंटेंसेस, ये सब हुआ है, हो रहा है, खूब हो रहा है, यू सी। तो ये जो एलीट एजुकेशन है ना, वो तो और बड़ा डिजास्टर है। बट यू सी, यहीं पर जो है क्या नाम है, मतलब
एटलीस्ट हम लोगों को अपने बच्चों का तो द पर्सन नियरेस्ट टू यू, वो लीडरशिप बाय एग्जाम्पल, वो इसमें अपने आप ही सीख मुझे जाएंगे। जब आप कर रहे हो ना तो दे विल ऑटोमेटिकली लर्न। एक्चुअली मेरे को यहाँ पे ना वो शिला प्रभुपाद की वो बात बहुत अच्छी लगी, जैसे कि भाई ठीक है, जैसे मुझे यू स्टार्ट री इमेजिनिंग कि भाई जैसे मुझे लॉर्ड ने ये गिफ्ट दिया है कि मैं मैथ्स कंप्यूटर साइंस पढ़ सकता हूँ, या मैं बायोलॉजी पढ़ सकता हूँ, या मैं कोई चीज पढ़ सकता हूँ, तो आई यूज इट टू सर्व लॉर्ड कृष्णा। हाउ कि भाई मैं पैसे कमा के मैं उससे पैसे कमा सकता हूँ, एंड मैं उसको भगवान में कुछ अर्पित कर सकता हूँ, मैं उसमें दूसरे लोगों को, मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में उसको कैसे लगा सकता हूँ। देन कि मैं, मेरे को ये गिफ्ट दिया है भगवान ने, हाउ कैन आई यूज इट टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्ण एज अपोज टू कि बस सिर्फ अपने लिए। तो ये मुझे मतलब, भाई और आप जैसा अब कहा है जैसे बार बार जैसे कि छोड़ना नहीं है, मतलब नॉट टू डिनाई योर गिफ्ट, दैट इज नॉट द आइडिया। अगर आपके पास मैथ्स पढ़ने का गिफ्ट है, दैट इज अ गिफ्ट ऑफ द लॉर्ड, उसको छोड़ना नहीं है, बट उसको भगवान में लगाना है, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन में नहीं। एंड दैट इज द वे टू गेट मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑल्सो, एक्चुअली पीस एंड जॉय। अभी तो वो गिफ्ट अपने तरफ लगा के यू आर यू इट कॉजिंग यू लॉट ऑफ पेन। पापा आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं यही कहना चाह रहा था, क्या कह रहा था मेरे दिमाग से ही उतर गया। नहीं जैसे कि करम आपको यू हैव टू बी इनोवेटिव कि कैसे भगवान को इस सर्विस में हम उसको लगा। जैसे हम लोग के अंदर में, सभी के अंदर में बड़ी काइंडनेस का वो बड़ा होता है। अब काइंडनेस में आप जो है अपने काम वाली को भी एक्स्ट्रा पैसे देंगे या कुछ करेंगे या उसको करेंगे। अब आपको पता ही नहीं है, वो काम वाली बेचारी है, उसको घर जाकर उसका हस्बैंड उसे मार पीट के वो पैसे छीन लेगा और दारू पिएगा, है ना। तो यू सी व्हाट यू शुड डू इन सच। भाई आप देखो कि कौन, आप हु इज डूइंग द डिवोशनल सर्विस, anyone who is doing devotional service and is need of money। मैं I have just been thinking like this, अभी just बैठे बैठे तुम्हारे लोग के साथ, then you can help him, that devotee you can help him, he will be kind of मतलब the same purpose is served। आप यहाँ आप सत्तो गुण कर रहे हैं, अब यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल को जाके दारू पी रही है, दारू पिलवा रही है अपने हस्बैंड को, या क्या कर रही है उस पैसे से, यू जस्ट डोंट केयर। मतलब मीट खा रही है या क्या कर रही है, बिकॉज आपने अपना कर्म कर दिया, लेकिन आप फिर भी सत्य गुण में रहोगे। एट बेस्ट यू कैन बी इन सदगुण करो, तो आपको फिर से दोबारा इस लाइफ डेथ के साइकिल में फंसे रहोगे, इवन सतगुण के थ्रू भी, बिकॉज यू विल हैव टू टेक बर्थ अगेन टू टू गेट दैट मनी फ्रॉम हर, यू सी। तो like that kind of you will always remain। बट इफ यू डू डिवोशनल सर्विस, जैसा मैं सोचता हूँ, उससे फिर आप क्या कर्म, जो कर्म है वो पोल्यूटेड नहीं होगा, उसका रिजल्ट कुछ नहीं होगा। वो भगवान जो है उसको क्या नाम है, ही विल टेक इट एज ए डिवोशनल सर्विस। हम लोग यही करने की कोशिश करते हैं। अब मतलब भगवत गीता जिसको भी है उसको देते रहते हैं, जो जो भी है, एनीवन शोइंग इंटरेस्ट, तो लाइक दैट। तो दिस इज व्हाट वी कैन थिंक ऑफ इनोवेटिव वे। ये क्योंकि यार ये मटेरियल जो है ना, ये जो एसेट्स का भोक्ता और क्या नाम है कर्ता होने का जो भाव है ना, आई एम द डूअर एंड आई एम द ओनर, ये जाता नहीं है। मतलब कहना ना कि इतना आसानी से कि यार आदमी जा करके वो जो है ना बर्गर खा लेगा 400 रुपए का, लेकिन 300-200 रुपए का दान देने में उसकी जान निकलती है। तभी एक्चुअली, तभी मैं वो मैं तभी पापा और हम तभी जानबूझ के मतलब ये भगवत एक गीता दूसरे को के फोर्स ये, करते रहते हैं। हाँ फोर्स करते रहते हैं कि भाई ठीक है, मतलब हर महीने इतने रुपए की भगवत गीता लेके उसको बांटना होता है, कि उससे उससे एक्चुअली मन की शुद्ध वो होना स्टार्ट हो जाता है, मन जो है भगवान में, फिर ताकि वो पैसा जो है। चलो भाई बाकी आगे भाई पढ़ो, है ना। लेट अस रीड नेक्स्ट। कौन पढ़ेगा, किसका नंबर है? हाँ 45 and हाँ हाँ तुम 45। पढ़ो। हाँ हाँ तत्र दुंदुभयो, हाँ राधा जी दीदी मैं, आप, हाँ पढ़ रही हो तुम? रुआ तुम पढ़ रही हो? तुम पढ़ लो। हाँ हाँ अच्छा हाँ ठीक ठीक। जी। तत्र दुंदुभो दुंदुभयो नेदुर देव मानव वादिताः शशंसु साधवो राज्ञाम्
खात्पेतु पुष्प वृष्टयः. अच्छा, translation. Thereafter, both men and demigods sounded drums in honor, and the honest royal order commenced demonstration of honor and respect, and from the sky fell showers of flowers. Bhishma Dev was respected by both the human beings and by the demigods. The human beings live on Earth and similar other planets in the Bhur and Bhuvar group of planets. But the demigods live in the Swar or the heavenly planets, and all of them knew Bhishma Deva as a great warrior and devotee of Lord. As a Mahajana or authority, he was on the level of Brahma, Narad, and Shiva. Although he was a human being, qualification on a par with the great demigod is possible only on attainment of spiritual perfection. But Bhishma Deva was known all over the universe, and during his time, interplanetary travel was effected by finer methods than the futile endeavors of mechanical spacecraft. When the distant planets were informed of the passing away of Bhishma Dev, all the inhabitants of the upper planets as well as of the earth dropped showers of flowers to show due respect to the departed great personality. This showering of flowers from heaven is a sign of recognition by great demigods, and it should never be compared to the decoration of a dead body. The body of Bhishma Dev lost its material effect due to being surcharged with spiritual realization, and thus the body was spiritualized as when iron become red hot when in contact with the fire. The body of a fully self-realized soul is not therefore accepted as material. Special ceremonies are observed for such spiritual bodies. The respect and recognition of Bhishma Dev was never to be imitated by artificial means, as it has become a fashion to observe so-called Jayanti ceremony for any and every common man. According to authorized sastras, such a Jayanti ceremony for an ordinary man, however exalted he may be materially, is an offense to the Lord, because Jayanti is reserved for the day when the Lord appears on earth. Bhishma Dev was unique in his activities, and his passing away to the kingdom of God is also unique. यहाँ पर भी ना मतलब उन्होंने एक तरह से भीष्म देव की काफी ग्लोरिफिकेशन किया है। एक बात और मुझे बड़ी मतलब जस्ट स्ट्रक मी कि डेमी गॉड्स वगैरह जो है ना उनके ऊपर फ्लावर की शावरिंग कर रहे हैं, एंड एक्चुअली आपने कहीं पढ़ा भी होगा ये वो डेमी गॉड्स ऑल्सो वॉन्ट टू कम बैक टू अर्थ, क्योंकि मतलब छुटकारा जो है ना स्वर्ग लोक में भी नहीं है, वहां पर भी सब कुछ यही है, सुख दुख सब है वहां पे। इंद्र को देखो लड़ता फिरता है, वो ही फील सो इनसिक्योर। जरा कोई ऋषि जो है तपस्या करने लग जाएगा, वो उसका सिंहासन डोलने लग जाएगा, भागता फिरेगा, कभी उर्वशी को लगाएगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, है ना। तो वो भी बड़े और भी क्या नाम है कई वो आते हैं क्या नाम है कि वो तो दे आर वेरी मच वांटिंग टू कम बैक टू अर्थ, क्योंकि यहीं पर जाकर के निकल सकता है आदमी। और तो और क्या नाम है जब सुखदेव महाराज जब इसका श्रीमद् भागवतम का वो कर रहे थे, तो ये देवताओं में इंद्र को भेजा क्या नाम है कि भाई तुम ये हमारे पास ये अमृत है, इसको दे दो और सारे लोगों को बांट दो वहां पे, इंक्लूडिंग क्या कहते हैं जो है परीक्षित महाराज को, और इन लोगों को दे विल गेट क्या नाम है मतलब अपना मुक्ति हो जाएगी इनकी, और हमें सुना दो। तो सुखदेव महाराज ने मना कर दिया, कहता नहीं, यू आर नॉट द राइट कैंडिडेट्स टू लिसन टू दिस, यू आर नॉट क्या नाम है, ओनली परीक्षित महाराज इज एंड द सेजेस प्रेजेंट एंड द ये मृत्यु लोक के वासियों के लिए ही है, तुम्हारे लिए नहीं है, यू आर नॉट द राइट कैंडिडेट्स, मना कर दिया उन्होंने। तो लाइक दैट क्या नाम है यू नो कि बट उनकी वो ये चूंकि वो भी सारे भक्त हैं भगवान के, जो देवता हैं वो मनुष्यों से ही एलिवेटेड हुए हैं,
मनुष्यों से ही एलिवेटेड हुए, जो हमारे अंदर में ही जो whom the God thinks कि भाई he is the candidate to be appointed as ब्रह्मा, he is fit to be appointed as this and that, है ना, वही लोग होते हैं। फिर वो हजारों हजारों साल की उनकी लाइफ होती है और फिर वो करके फिर तो दोबारा यहाँ पे आते हैं एंड क्या नाम है, दे गेट आउट। अब या हो सकता है वहां पे भी करते होंगे ब्रह्मा जी, है ना, भगवान के भक्त तो हैं ही है वो सारे देवता, इसीलिए उनकी भी वर्शिप करने का विधान है। उनको इग्नोर करने के लिए भगवान ने कहीं नहीं कहा है ना। ओनली थिंग ये है कि भाई भगवान की जब आप भक्ति करेंगे तो देवता भी खुश हो जाते हैं, वो उनकी ऑटोमेटिक हो जाती है ये बात। चलो आगे वाला पढ़े हैं, है ना। जी। 46 तो हाँ मैं पढ़ू ना। तस्य निहरन्धिनी संप्रेतस्य भार्गव युधिष्ठिरा कारयित्वा मुहूर्तम दुखितो भवत्। ओ डिसेंडेंट ऑफ भृगु शौनका, ये वो बता रहे हैं मैं क्या क्या कहते हैं, सूता गोस्वामी, है ना। ओ डिसेंडेंट ऑफ भृगु दैट इज शौनका ऋषि, आफ्टर परफॉर्मिंग फ्यूनरल रिचुअल्स for the dead body of Bhishma Dev, Maharaja Yudhishthir was momentarily overtaken with grief. Bhishma Dev was not only a great family head of Maharaja Yudhishthir, but also he was a great philosopher and friend to him, his brother and his mother. Since Maharaja Pandu, the father of the 5 brothers headed by Maharaja Yudhishthira, had died, Bhishma Dev was the most affectionate grandfather of the Pandavas and caretaker of the widow daughter-in-law Kunti Devi. Although Maharaja Dhritarashtra, the elder uncle of Maharaja Yudhishthira, was there to look after them, his affection was more on the side of 100 sons headed by Duryodhana. Ultimately, a colossal clique was fabricated to deprive the 5 fatherless brothers of the rightful claim of the kingdom of Hastinapur. There was a great intrigue common in imperial palaces, and the 5 brothers were exiled to the wilderness. But Bhishma Dev was always a sincerely sympathetic, well-wisher grandfather, friend and philosopher to Maharaj Yudhishthir, even up to the last moment of his life. He died very happily by seeing Maharaja Yudhishthira to the throne. Otherwise, he would have long ago quitted his material body, instead of suffering agony over the undue suffering of the Pandavas. He was simply waiting for the opportune moment because he was sure and certain that sons of Pandu would come out victorious in the battle of Kurukshetra, as his lordship Sri Krishna was their protector. As a devotee of the Lord, he knew that Lord's devotee cannot be vanquished at any time. Maharaja Yudhishthir was quite aware of all these good wishes of the Bhishma Dev, and therefore he must have been feeling the great separation. He was sorry for the separation of great soul, not for the material body which Bhishma Dev relinquished. The funeral ceremony was a necessary duty. Although Bhishma Dev was a liberated soul, since Bhishma Dev was without issues, the eldest grandson, namely Maharaja Yudhishthir, was the rightful person to perform this ceremony. It was a great boon to Bhishma Dev that an equally great son of the family undertook the last rites of a great man. भाई यहाँ पे एक चीज और भी है कि भाई इट इज ऑल राइट टू बी, मतलब थोड़ा सा इवन युधिष्ठिर टाइप के भी लोग जो है ना, वो they were taken by the momentary grief, they were मतलब very human that way, but not for the body. ये चीज है उनको कि भाई ये जो है ना, क्योंकि we interact with each other through the body only, no, मतलब that is, although क्या नाम है, जब आप when you start interacting as a devotee, it becomes at a very different plane, है ना. So that part is there, that is the part you may miss, you know.
दैट इज द पार्ट का नाम है, मतलब युधिष्ठिर वाज, मतलब भीष्मदेव वाज काइंड ऑफ ए मेंटर आल्सो फॉर हिम, है ना, मतलब बेनिफैक्टर, मेंटर, वेल विशर, वो एस्पेक्ट्स तो ही विल नाउ मिस इन एनी केस। यही पर यही बताया। चलो जी आगे पढ़ो यार, हैं? 47 हाँ 47 हम्म। तुष्टुवुर्मुनयो हृष्टा कृष्णां तद्गुह्या नामभि ततस्ते कृष्ण हृदयः स्वाश्रामन् प्रायायुः पुनः. All the great sages then glorified Lord Shri Krishna, who was present there, by confidential Vedic hymns. Then all of them returned to their respective hermitages, bearing always Lord Krishna within their hearts. Purport. The devotees of the Lord are always in the heart of the Lord, and the Lord is always in the hearts of the devotees. That is the sweet relation between the Lord and his devotees. Due to unalloyed love and devotion for the Lord, the devotees always sees him within themselves. And the Lord also, although he has nothing to do and nothing to aspire to, is always busy in attending to the welfare of his devotees. For the ordinary living beings, the law of nature is there for all actions and reactions, but he is always anxious to put his devotees on the right path. ये भगवान के लिए कह रहे हैं. The devotees, therefore, are under the direct care of the Lord, and the Lord also voluntarily puts himself under the care of his devotees only. So, all the sages headed by Vyasdev were devotees of the Lord, and therefore they chanted the Vedic hymns after the funeral ceremony just to please the Lord, who was present there personally. All the Vedic hymns are chanted to please Lord Krishna. This is confirmed in Bhagavad Gita 15.15. All the Vedas, Upanishads, Vedanta, etc. are seeking him only, and all hymns are for glorifying him only. The sages therefore performed the exact acts suitable for the purpose, and they happily departed for their respective hermitages. ये तो बहुत ज्यादा, मतलब इट इज सो ब्रिलियंट. इसमें मतलब कि कितना अच्छा लिख रहे हैं शिला प्रभुपाद कि भाई जो डिवोटीज हैं उनको तो स्पेशल केयर में है लॉर्ड के अंडर में, बाकियों को तो नॉन डिवोटीज तो माया के अंडर में है. तो माया तो ज्यादा ट्रेचरस तो कोई चीज है ही नहीं. तो वो तो बहुत मतलब, वेरएज भगवान खुद अपने डिवोटीज को सही काम पे लगा रहे हैं. इसलिए हम लोगों को बिल्कुल, अगर उसकी वजह से आपको वो भी हो रहा है, सफरिंग भी हो रही है, वो भी भगवान की मर्सी है. वो भी भगवान आपका कल्याण कर रहे हैं. जैसे वो बड़ा अच्छा लगता है नहीं, भगवान हर समय आपका कल्याण करने में लगे हुए हैं, आपका कल्याण, ताकि आप उनके पास वापस आ सको. वेरी ब्रिलियंट. बहुत अच्छा है. जो मतलब मैं He is ये all हाँ हाँ रूपा, यस, he is always anxious to put his devotees on the right path. Lord Krishna is always anxious to put his devotees on the right path. क्योंकि भाई कभी कभी डिवोटी गलत अगर गिर भी जाए, तो क्योंकि भाई अभी हमारे अंदर तो कमियां बहुत है ना, तो हमारे अंदर तो लॉर्ड कृष्णा इज ऑलवेज एंशियस टू पुट हिज डिवोटी, जबकि उनके लिए तो कुछ करने योग्य है ही नहीं, बट फिर भी वो कितना केयरिंग फादर हैं. भैया ये मूढ़ा जो है, फिर से मैं सही रास्ते पे लगाता हूँ. रूपा तुम कुछ कह रही थी क्या? से हमने ये महसूस किया कि जब जैसे होता है ना कि हम लोग थोड़ी देर के लिए भक्ति में बैठते हैं, थोड़ी देर के लिए कोई बुक पढ़ते हैं, उसका इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस महसूस करते हैं। लेकिन कुछ टाइम पहले मैंने ऐसा महसूस किया, एक सिमिली मेरे दिमाग में आई कि जैसे हम लोग साधारण हाड़ मांस के बने मम्मी-पापा हैं, हम लोगों के अपने बच्चे हैं। तो जो बच्चे हम लोगों को मतलब माँ-बाप को रिस्पेक्ट करते हैं, माँ-बाप को प्रेम करते हैं, उनके प्रति एक आदर सम्मान का भाव रखते हैं, उनकी बातें मानते हैं। बच्चे और भी हैं, लेट वी हैव 3-4 प्रोजनीज़। तो कुछ जो हमारी बात को समझ रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है भगवान और हम लोग इस सिमिली में हैं कि सिर्फ़ बच्चों का कल्याण ही चाहते हैं, सिर्फ़ बच्चों का भला ही चाहते हैं। लेकिन एज़्यूम करो कि एक बच्चा ऐसा है जो आपकी इन बातों को चाहे स्वप्रयासवश या प्रेमवश आपकी बातें समझ रहा है, मान रहा है, अनुकरण कर रहा है, और एक वो जो बिल्कुल अपने वे में रह रहा है कि हम देखेंगे, हम कर लेंगे, एक बहुत कॉन्फिडेंस है और वो संसार को उसी तरीके से जी रहा है, फाइट कर रहा है।
तो देखने की बात ये है, हालांकि भगवान तो इतने कृपालु हैं कि वो उस पूरी साइकिल को भी कहीं ना कहीं भुक्त भोगा बना करके आपको ये ज्ञान दे ही देंगे उस बच्चे को भी कि हाँ क्या सही था। और अल्टीमेटली जैसे अपन महसूस करें कि व्हेन वी वर 5 और 15 ईयर ओल्ड, तब हम लोग किस तरीके से अपने माँ पापा की चीजों को देखते थे, उनके डिसीजंस, उनकी जो चीजें थोपना कंट्रोलिंग जैसी लगती थी। लेकिन आज जब वी है 40-45, तो कहीं ना कहीं एक पूरा रिसाइक्लिंग में समझ आता है कि अच्छा क्या इंटेंशन थे, क्यों कहते थे, रियली क्या उनके पास ग्रेटनेस ऑफ नॉलेज थी जिसकी वजह से वो हम लोगों को सब समझाते थे। मुझे ऐसी बिल्कुल भगवान के लिए लगता है कि भगवान की बातें अगर हम लोग मानते हैं तो इन द सेम वे वी गेट दैट हाईनेस ऑफ हिम। बड़ा पक्की बात कर दी है तुमने भाई। ये जो है ना, यही तो बात है ना। आपने ये सब वहीं से आया हुआ है। अपने माँ बाप की इज्जत करना, उनका हाँ लव करना। और माँ बाप, लड़का अगर आवारा गुंडा भी हो गया तो माँ बाप का प्यार उसके लिए कम नहीं हो जाता। नहीं होता है वो जो है ना, वो यही चाहेंगे, उसका भला ही चाहते रहेंगे। भाई। That is Yes. the difference. It is a one-way love. There is no transaction between, especially the mother and the child. हाँ चाहे कर्म है कितना भी, वही भगवान का भी है। और भगवान तो समझो आप, हमारे तो भाई मॉर्टल फादर है, उनकी तो लिमिटेशन थी। वो तो बेचारे नहीं कर, कुछ लोग कर पाए, कुछ लोग नहीं कर पाए अपने बच्चों के लिए मटेरियली इतना। लेकिन भगवान तो ऑल पावरफुल है, उनके पास सब कुछ है। यू सी अपन सो कहते ही है दया का सागर, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। तो ये सोचने वाली बात है कि वाकई उनके पास तो सब कुछ है। अगर हम लोग उनकी बात मानेंगे तो सच में क्या नहीं दे देंगे वो, क्या नहीं, यू क्या सी ही दे। यहीं पर जो आपको परसिस्ट करने की जरूरत है आपके लाइफ में। फिर भी अगर रिवर्सेस भी आते हैं ना, डोंट लीव इन, हाँ बल्कि गो मोर टू हिम, मोर टू मोर हिम। दैट इज यस। एन ओकेजन टू हमारा जो धार लीन करता मोर ऑन हिम। है। और आप देखोगे इसका बेनिफिट होगा तुरंत। आपको हाँ डिप्रेशन से, यू विल कम आउट ऑफ डिप्रेशन, यस। यू विल स्टार्ट फीलिंग ये जो जॉयफुल। हर एक के लाइफ में आती है इस टाइप की। अनटाइमली एक्सीडेंट हो जाता है, जॉब छूट जाता है, कुछ भी हो जाता है। मतलब आजकल प्राइवेट सेक्टर में लोगों के जॉब भी छूट जाते हैं, कहना मैं ऐसा कुछ नहीं, बट दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सही। अदरवाइज क्या है कि आप भगवान के पास जाएंगे तो आपको सद्बुद्धि देंगे, क्या है, क्योंकि वही देते हैं बुद्धि और ज्ञान और सब कुछ। अदरवाइज वो माया के चक्कर में रहोगे आप, तो साला कहो सुसाइड ही करवा दे। वो तो भाई। है ना, आदमी इतना मोरोस हो जाता है, इतना कि यार ही स्टार्ट सीइंग कि यार इस लाइफ का फायदा क्या है, व्हाई डोंट है, क्यों मैं कष्ट सहता सहता रहूं। हाँ लोग हाँ इन सब चक्करों में पड़ जाते हैं, यू नो। हर एंड तत्व का असर होता है। अब सत्य तत्व पकड़े, असत्य तत्व पकड़े तो वो उसी तरह से प्रभावित करता है। चलो नेक्स्ट यार, खत्म कर दें। एक या दो वर्ष बचे हुए हैं, है ना। यस। हाँ, 2 बचे हैं। हाँ, खत्म कर खत्म कर 48 दें। हाँ मौसी जल्दी पढ़ जल्दी पढ़ के, है ना। जी, मैं पढ़ रही हूँ जी। हाँ हाँ पढ़ो पढ़ो। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाव्यं पितरं सांत्वयामास गांधारीं च तपस्विनीं। Translation. Thereafter, Maharaja Yudhishthir at once went to the capital Hastinapur, accompanied by Lord Shri Krishna, and there he consoled his uncle and aunt Gandhari, who was an ascetic. Purport. Dhritarashtra and Gandhari, the father and mother of Duryodhana and his brothers, were the elder uncle and aunt of Maharaja Yudhishthir. And the battle of Kurukshetra, the celebrated couple, having lost all their sons and grandsons, were under the care of Maharaja Yudhishthir. They were passing their days in great agony over such a heavy loss of life and were practically living the life of ascetics. The death news of Vishnudev, uncle of Dhritarashtra, was another great shock for the king and the queen, and therefore they required solace from Maharaja Yudhishthir. Maharaja Yudhishthir was conscious of his duty, and he at once hurried to the spot with Lord Krishna and satisfied the bereaved Dhritarashtra with his kind words, and from both himself and Lord also. Gandhari was a powerful ascetic, although she was living
the life of a faithful wife and a kind mother. It is said that Gandhari also voluntarily blindfolded her eyes because of the blindness of her husband. A wife's duty is to follow the husband person, and Gandhari was so true to her husband that she followed him even in his perpetual blindness. Therefore, in her actions, she was a great ascetic. Besides that, the shock she suffered because of the wholesale killing of her 100 sons and her grandsons also was certainly too much for a woman. But she suffered all this just like an ascetic. Gandhari, although a woman, is no less than Bhishma Dev in character. They are both remarkable personalities in Mahabharata. तो कितनी बड़ी बात को प्रभुपाद जी ने गांधारी जी को किसने हाई पेडेस्टल पे बैठा दिया है, जस्ट बिकॉज ही वाज कर्म में पतिव्रता थी वो। मतलब कि वो उन्होंने जो धृतराष्ट्र चूंकि बेचारे अंधे थे, उनको बड़े तकलीफ थी, तो उन्होंने भी कर्म में देन शी पूरी सारी जीवन उन्होंने अंधे की तरह बिताया। मतलब उन्होंने अपने सर पे और शी वाज एन एसेटिक, ये सब भी है उनके कर्म है, मतलब कैरेक्टर में। तो यू सी कितने हाई लेवल को, ये सब तो खैर और भी आप लोग पढ़ोगे तो लगेगा कि भाई वुमन जो पतिव्रता स्त्री है, अगर उसका पति जो है वो कर्म है मतलब डिवोशनल सर्विस करता, 50% शी टेक्स विदाउट कर्म है डूइंग डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस, जस्ट बाय बीइंग इज पतिव्रता होने की वजह से उसको मिल जाता है। और मैं आपको बताऊं क्या नाम है कि ऐसा भी ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है। मेरी नानी जो थी ना, हमारे नाना को डायबिटीज हो गया था बहुत, मतलब, और वो जो थे गोरखपुर के लोग तो है ना, चावल और आलू और इनके लिए तो मरते हैं। राइस जो है ना, वो भात बोलते ही है वहां पे, चोखा भात और ये सब चीजें जो है ना, दे आर मैड आफ्टर दैट। बट यू नो just to console him, she stopped taking rice and aloo. She left rice, aloo and sugar. और वो नाना की तो डेथ हो गई, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन 60-61। उन दिनों में डायबिटीज का जो आज की तरह नहीं था कि इतना एडवांस था कि आप टेस्ट भी कर सकते हैं, तरह तरह की मेडिकेशन भी आ जाते हैं, पीरियड तब नहीं था। शुगर का तो बहुत से लोगों को पता लगता है जब वो यूरिन में चींटियां बैठने लग जाती थी, तब काफी एडवांस स्टेजेस में। तो ही डाइड एट द एज ऑफ 60-61। नानी आई थिंक शी लिव्ड अप टू 85 और समथिंग, एंड वो ऑलरेडी उस जमाने में वाइफ जो होती थी वो छोटी होती थी। 85 की जब तक अपनी डेथ तक उन्होंने ये नियम का पालन किया कि नेवर टू राइस, आलू एंड शुगर, देयर मतलब नेवर टिल द एंड। तो ये जो है ना, ये ऐसे लोग जो है अपने आप ऑटोमेटिकली दे अटेन। चलो नेक्स्ट क्लास पढ़ लेते हैं। 49 आपके टर्न मेरा है। हाँ, पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यम धर्मेण पितृपैतामहं विभु। After this, the great religious king Maharaja Yudhishthira executed the royal power in the kingdom strictly according to codes and royal principles approved by his uncle and confirmed by Lord Shri Krishna. Maharaja Yudhishthira was not a mere tax collector. He was always conscious of the duty as a king, which is no less than that of a father or a spiritual master. The king is to see the welfare of the citizens from all angles of social, political, economic, and spiritual upliftment. The king must know that human life is meant for liberating the encaged soul from the bondage of material conditions, and therefore his duty is to see that the citizens are properly looked after to attain this highest stage of perfection. Maharaja Yudhishthira followed these principles strictly, as will be seen from the next chapter. Not only did he follow the principles, but he also got approval from his old uncle, who was experienced in political affairs, and that was also confirmed by Lord Krishna, the speaker of the philosophy of Bhagavad Gita. Maharaja Yudhishthira is the ideal monarch, and monarchy under a trained king like Maharaja Yudhishthira is by far the most superior form of government. Superior to the modern republics or governments of the people, by the people, by the people. The mass of people, especially in this age of Kali, are all Shudras,
basically low-born, ill-trained, unfortunate, and badly associated. They themselves not know the highest perfectional aim of life. Therefore, the votes cast by them actually have no value. And thus, persons if elected by such irresponsible votes cannot be responsible representatives like Maharaja Yudhishthir. कितना बड़ा प्रभुपाद जी ने बोल्डली ये सब डिक्लेयर कर देते हैं कि दैट इज द ब्यूटी ऑफ हिज, ही इज नॉट अफ्रेड। उन्होंने क्या नाम है लिख दिया कि वी आर ऑल शूद्रास, हमारी ना तो अकल है ना कुछ है, उन्हीं का वोट जो है देख तो रहे हो हम आज की डेट में क्या हालत हो रही है। आज की डेट में अमेरिका की भी वही डेमोक्रेटिक कंट्रीज बिल्कुल ही बर्बाद हो गए, टू टेल यू द ट्रूथ, क्योंकि वही पॉपुलिस्ट मेजर चल रहे हैं, सबका सेल्स ग्रेटिफिकेशन, कोई साला टैबलेट बांट रहा है, कोई लैपटॉप बांट रहा है, किंग का भाई इसमें किंग का वो करता ना, किंग जो है भाई मेरे को तभी अब समझ में आता है इतने बड़े बड़े टेम्पल्स बन कैसे रहे थे, क्योंकि किंग पायस था। तो वो किंग इतने बड़े बड़े टेम्पल्स के थ्रू सबको भगवान की तरफ कि भाई तुम टेम्पल बनाओ, तुम टेम्पल बनाने के लिए फिर उसको सपोर्ट करो, सबको भगवान के कामों में लगाने की किंग काम करता था। तभी इतने बड़े बड़े टेम्पल्स इंडिया में बन रहे थे, एक नहीं वो तो पता नहीं कितने तो नॉर्थ इंडिया में उन्होंने टेम्पल्स गिराए हैं, अदरवाइज तो टेम्पल भरे हुए थे इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में। दैट मेक सेंस। अभी आप कोई भी गवर्नमेंट ले लीजिए, उनका तो कोई भगवान से तो लिटरली उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड चर्च, स्टेट एंड उन्होंने बिल्कुल अलग कर दिया भगवान को। यहाँ यूएस में आप लिटरली स्पीकिंग देखा जाए ना तो इस्लामिक कंट्रीज जो है उनकी सोसाइटी ज्यादा स्टेबल है, बिल्कुल हाँ, इनसे हमारे लोगों से बेटर है। मतलब ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। नॉट इस्लामिक कंट्रीज लाइक पाकिस्तान जहाँ पे बिल्कुल फेक डेमोक्रेसी है, और जो रियली कर्म है जहाँ पर वो कर रहे हैं ना, तो वो फिर भी आपको लगेगा सऊदी अरेबिया वगैरह, बट स्टिल स्लाइटली बेटर। भाई कम से कम वो अपने रिलीजन को पढ़ तो रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते तो हैं बचपन से ही, उनको पता तो है, रटाते हैं बैठ के उनको कुरान वगैरह जो भी है। यहाँ पे पहले करते थे, हमारे वहां पे भी करते थे, जैसा हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे श्रीमद् भागवतम वगैरह, इवन 1960s तक भी, जैसा कि शिला प्रभुपाद का अकाउंट है, लोग पढ़ते थे ये सब श्रीमद् भागवतम भगवत गीता। अब तो नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए तो अरे भाई हम लोग खुद ही भगवत गीता के बारे में तो फिर भी पता था, भागवतम के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं पता था, पुराण के बारे में कुछ नहीं पता था। चलो खैर, एनीवे आई थिंक करम है, एक तो मेन चीज है चूंकि वी आर कंक्लूडिंग युधिष्ठिर महाराज की टीचिंग, लेकिन बहुत अच्छी रही करम है। अभी तक भागवतम में जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, ये तीसरा सबसे पहला, यू शुड ट्राई टू रिकलेक्ट एंड मेडिटेट ऑन नारद मुनि का हिस्ट्री जो है, कि कैसे वो बेचारे बचपन में वो ऋषियों के पास बैठते थे, उनसे करने उनकी माँ की कैसे डेथ हो गई है, हाउ द मतलब फेट, हाउ द काल कर्म टूक अवे his mother at the age of 5, how he मतलब मेडिटेटेड ऑन द सुप्रीम लॉर्ड। वो ऊपर चलते चले गए नॉर्थ में, और जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठ करके कर्म वो मेडिटेट कर रहे हैं, भगवान ने उनको दर्शन दिए, और फिर देन ही बिकेम नारद। और कैसे उन्होंने आके व्यास देव जी को, जब इल्यूजन में थे कि भाई उन्होंने इतनी किताबें लिख दी, महाभारत भी लिख दिया, वेद भी लिख दिया, तब भी ही वाज नॉट हैप्पी, देन ही केम एंड एनलाइटेंड हिम। तो नारद जी का वृतांत आप लोग अगर मेडिटेट करें तो आपको अच्छा लगेगा। यही है यही कथाएं हैं, और जिनका वो है। दूसरा आता है कुंती देवी का, सच ए ब्रिलियंट एक्सपोजिशन। जब कुंती माता जो है प्रे करती है लॉर्ड को, जब वो जाने वाले होते हैं द्वारका, और वो उनको हाथ पकड़ के रोक के कहते हैं कि भाई आप मत जाओ अभी, आप वो तो जो सबसे बड़ा उनका जो एस्पेक्ट है, वो कहती है कि हमारे पास तो विपत्तियां आती रहे, शी प्रेज उनसे कि हमारे पास विपत्तियां आती रहे ताकि हम आपको प्रे करते रहे। भाई एटलीस्ट हम इस तरह का ना प्रे कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई आती है मुसीबत तो देन वी शुड ट्राई टू गो मोर टुवर्ड्स द लॉर्ड। कुंती माता का यही सबसे बड़ा मतलब टीचिंग है। और थर्ड ये युधिष्ठिर महाराज का, अरे इनका भीष्म पितामह। अभी तक 3 ये आपको क्या नाम है, अभी तो मतलब अभी आगे और भी बड़े गजब के आएंगे। इसीलिए भागवतम को ना आप जब भी दोबारा पढ़ो आपको हमेशा नया लगेगा, हमेशा नया लगेगा। ए न्यू
रस आपको मिलेगा। हाँ इट इज ये हमारा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैं बता रहा हूँ। ये लोग कहते थे लेकिन हम मानते नहीं, लेकिन ये पर्सनल है बिल्कुल। एवरी टाइम यू रीड भगवत गीता में ही आपने फील किया होगा, जो लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं ना, तो उनको लगेगा क्या नाम है, एनी टाइम नहीं, यू इनका रीड। ये पापा का है, आपका तो शायद ये थर्ड टाइम है। एक बार पापा हिंदी में पढ़ चुके हैं गीता भगवत वाली, गीता, गीता गीता प्रेस प्रेस वाली। गीता प्रेस वाली एक बार पढ़ चुके हैं, फिर एक बार ये पूरी श्रीमद् भागवतम शिला प्रभुपाद की इंग्लिश में पूरी पढ़ चुके हैं, अब ये तीसरी बार पढ़ रहे हैं। और एक बात और बता दे मतलब मैं कि जिस तरह से अब हम लोग पढ़ रहे हैं ना, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। बेस्ट। बट क्या नाम है, इसके अंदर में अभी हम ये नहीं कह रहे हरी करेंगे, मतलब बट इसमें 10 साल लगेंगे हम लोगों को। 5 श्लोक रोज पढ़ पाते हैं, 18,000 श्लोक है, यू नो 18,000। बट इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। यू सी यू मस्ट कंटिन्यू दिस वे, क्योंकि इसी में जब तक आप एक दूसरे से डिस्कस नहीं करें, श्रवणम कीर्तनम हो जाता है, ये दोनों ऑटोमेटिकली हो जाता है। चलो भाई है, एनीवे यू गाइस स्टार्ट योर डे, आई आल्सो है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare हरे Krishna, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे Hare कृष्ण कृष्ण Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू ऑल। थैंक यू ऑल। या